Good morning everyone. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In a last lecture we have studied about the hydrology and hydrological cycle. Now today in today's lecture we are going to study about the water cycle balance. So usually the water cycle is in a balance and the amount of precipitation falling will slowly soak into the ground and eventually reach to the rivers. So however, if rain falls for a long period of the time or if the ground is already soaked or saturated with the water, then chance of flooding is increased. A water balance can be established for any area of Earth's surface by calculating a total precipitation input and a total of various outputs. So the water balance approach allows the examination of a hydrological cycle for any period of time. The purpose of the water balance is to describe the various ways in which the water supply is expended. The water balance is a method by which we can account for a hydrological cycle of a specific area with the emphasis on plants and soil moisture. Right? So water balance basically क्या है? वन टाइप ऑफ मेथड है कि हम लोग कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे वर्क करती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. सो पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर हमें रन ऑफ या रेनफॉल कैलकुलेट करना है तो by using this water balance method we can calculate. So what is water balance basically? So water input and output is in a balance globally, right? So P is equal to R plus E into T, right? So what is P? P is the precipitation. And what is R? R is a runoff. And E means evaporation and T means transpiration, right? सो ये आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हो ग्लोबल हाइड्रोलिक बैलेंस कैसा होता है. सो बेसिकली प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू आर प्लस ई इंटू टी, ये इक्वेशन है. सो हाइड्रोलॉजिक वाटर बैलेंस. सो वाटर इनपुट एंड आउटपुट इज़ नॉट ऑलवेज इन अ बैलेंस लोकली, राइट. ऑलवेज वो बैलेंस में नहीं होते हैं. कभी कभी पी डज नॉट इक्वल टू आर प्लस ई इंटू टी. तो जब P डज़ नॉट इक्वल टू आर प्लस ई इंटू टी होता है तो क्या मिसिंग होता है, मतलब क्यों नहीं होता है? बिकॉज ये जो स्टोरेज है वाटर स्टोरेज वो मिसिंग होता है, राइट. सो अगर हम लोग ये वाटर स्टोरेज को प्लस कर दे तो हमें टोटल प्रेसिपिटेशन मिल सकता है. क्योंकि क्या होता है जो पानी हमें गिरता है लैंड पे वो आइदर रन ऑफ इवेपोरेशन और ट्रांसपोरेशन होता है. बट उसके साथ साथ और क्या होता है, पानी इनफिल्ट्रेशन होता है. ठीक है. जो पानी इनफिल्ट्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है. ठीक है. ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के ऊपर कहीं ना कहीं ये पानी स्टोर होता है. सो इसीलिए ये जो डेल्टा एस है वो मिसिंग था वो इक्वेशन के अंदर. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट पोर्शन ऑल्सो, राइट, कि कितना पानी स्टोर हुआ है, तभी हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बैलेंस होगी. सो मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर कमिंग इन एंड गोइंग आउट टू एक्सेस अवेबिलिटी, राइट. सो ये फिगर में आप देख सकते हो कि वो लोग मेज़र कर रहे हैं. So the water balance is defined by a general hydrological equation which is basically statement of a law of conservation of mass as applied to in a hydrological cycle, right. So in its simplest form this equation reads inflows is equal to outflow plus change in storage. चेंज इन स्टोरेज हम लोगों ने उसके अंदर ऐड कर दिया है क्योंकि जितना इनफ्लो होता है उतना आउटफ्लो भी होता है, उसके साथ साथ थोड़ा स्टोरेज में चेंज होता है. सो वाटर बैलेंस इक्वेशन कैन बी असेस्ड फॉर एनी एरियाज एंड फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ओवरऑल वाटर बैलेंस फॉर अ सर्टेन एरिया thus implies that the evaluation is necessary of all inflow, outflow and water storage components of a flow domain so as bounded by the land surface by the impermeable base and of underlying groundwater
reservoir and by the imaginary vertical planes of a area of boundaries, right? सो बेसिकली जो वाटर बैलेंस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सो वो एक बेसिकली इक्वेशन है जिसके अंदर हमें कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल अप्लाई किया है. वाटर बैलेंस मेथड हैज़ 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. कौन से है, तो फर्स्ट है water balance can be assessed for any subsystem of a hydrologic cycle for any size of area and for any period of time. ठीक है. सेकेंड है a water balance can serve to check whether all flow and storage components involved have been considered quantitatively, right? वो चेक करता है कि जो ये वाटर के स्टोरेज है वो इन्वॉल्व है कि नहीं है. ठीक है. थर्ड है द वाटर बैलेंस कैन सर्व टू कैलकुलेट वन अननोन ऑफ इक्वेशन प्रोवाइडेड इन अदर कंपोनेंट्स आर नोन इन सफिशिएंटली एक्यूरेसी, राइट? सो वाटर बैलेंस के अंदर जो कैलकुलेशन किया है बैलेंस इक्वेशन का, उसके अंदर जो हम लोगों ने अदर कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है. ठीक है. एंड लास्ट है अ वाटर बैलेंस कैन बी रिगार्डेड एज अ मॉडल ऑफ अ कंप्लीट हाइड्रोलिक प्रोसेस अंडर द स्टडी, विच मीन्स it can be used to predict what effect the changes imposed on a certain components will have on other components of the system or a subsystem, right? So ये 4 जो पॉइंट्स है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वाटर बैलेंस सिस्टम के. सो बेसिकली वाटर बैलेंस इक्वेशन क्या है, सो P इज इक्वल टू Q प्लस E प्लस DS अपॉन DT. सो अगेन P है प्रेसिपिटेशन जो होता है mm पर स्क्वायर में, Q है डिस्चार्ज, E है इवेपोरेशन एंड DS बाई DT है स्टोरेज चेंज पर टाइम स्टेप, राइट? सो आप ये फिगर में भी देख सकते हो. फिगर के थ्रू बहुत इजीली वाटर बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि रेन आता है, आधा पानी रन ऑफ होता है, आधा पानी ग्राउंड वाटर में जाता है, आधा पानी इवेपोरेट होता है या फिर ट्रांसपिरेट होता है. ठीक है. सो दिस इज द मेन इक्वेशन फॉर अ वाटर बैलेंस. So without accurate water balance, it is not possible to manage a water resources of a country. So when working on the water balance, it is initiative to face that appropriations of water within a country is a highly dynamic and a variable process, both spatially and temporary. So therefore a methodology which is directly dependent on a time unit and is a function of a measured hydrometeorological and hydrological data quality and data availability, so is the most significant element. So due to a human influence, change of the water needs and climatic variations or changes, वाटर बैलेंस ऑफ एन एरिया कैन नॉट बी टेकन एज अ फाइनल, राइट? हम लोग फाइनल नहीं ले सकते हैं उसको. द प्रोसेस मस्ट कॉन्स्टेंटली बी मॉनिटर्ड, कंट्रोल्ड एंड अपडेटेड. मेजर रोल ऑफ ईच वाटर बैलेंस इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अ वाटर रिसोर्स फॉर अ गिवन एरिया, राइट? सो यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है. फिगर में क्या है, प्लेसमेंट ऑफ अ टिपिकल मेजरिंग इक्विपमेंट फॉर मॉनिटरिंग अ वाटर बजट ऑफ अ एल्यूवियल वेटलैंड. ठीक है. सो ये फिगर के थ्रू आप देख सकते हो कि ये मेजरिंग इक्विपमेंट का प्लेसमेंट कर रहे हैं वाटर बजट के लिए. ठीक है. वाटर कैलकुलेट करने के लिए वाटर बैलेंस
कैचमेंट वाटर बैलेंस। अब हमें कैचमेंट वाटर बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो आप ये फिगर के थ्रू कैलकुलेट देख सकते हो, लेकिन उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो रेनफॉल इज इक्वल टू रिवर फ्लो आउटफ्लो रेनफॉल माइनस रिवर फ्लो आउटफ्लो is equal to evapotranspiration. So from this equation we can solve the unknown evapotranspiration, right? ये इक्वेशन के थ्रू हमें ये मिल जाएगा, अननोन जो evapotranspiration हो रहा है उसकी अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद है सब सरफेस वाटर, ठीक है। सरफेस वाटर का तो हम लोगों ने देख लिया, अब सब सरफेस वाटर। सो जो सब सरफेस वाटर कौन सा कहलाएगा, कौन सा वाटर सब सरफेस वाटर के अंडर आएगा? तो सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन, जो पानी लैंड के अंदर इनफिल्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, तो वो सब सरफेस वाटर के अंडर में आएगा। सेकेंड है सब सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, आधा पानी मॉइस्चर कंटेंट के रूप में सॉइल के अंदर जाता है। सो द सॉइल मॉइस्चर विल ऑल्सो लाइज इन सब सरफेस वाटर फेसिस। थर्ड वन है सब सरफेस फ्लो, जो सब सरफेस फ्लो होता है वो भी सब सरफेस वाटर में आएगा। उसके बाद है ग्राउंड वाटर फ्लो, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरी है सब सरफेस फ्लो की। अब हम लोग देखेंगे अंडर द ग्राउंड। अंडर द ग्राउंड में कौन से लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऊपर का लेयर होता है सरफेस लेयर, उसके बाद का लेयर है जोन्स ऑफ एरेशन, उसके बाद है वाटर टेबल एंड उसके बाद है जोन ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। उसके बाद है पोरस मीडियम फ्लो। पोरस मीडियम फ्लो किसको बोलते हैं? सो पोरस मीडियम फ्लो में क्या क्या आएगा? तो सब सरफेस वाटर सबसे पहले तो देख लेते हैं। सो ऑल वाटर फाउंड बीनेथ द ग्राउंड सरफेस के नीचे जितना भी पानी हमें मिलता है वो सारा पानी हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे? सब सरफेस वाटर। ऑक्यूपाइज अ पोर्स, मतलब वॉइड स्पेस नॉट ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड मैटर, राइट। जो वॉइड स्पेसिस है जिसके अंदर सॉलिड मैटर्स है वो कंसिडर नहीं होगा। पोरस मीडिया, सो पोरस मीडिया क्या है? न्यूमोरियस पोर्स ऑफ द स्मॉल साइज, पोर्स कंटेन फ्लूइड्स एंड एयर एंड पोर्स एक्ट एज अ कॉन्ड्यूट्स। वो जो 3 चीज़ें हैं वो पोरस मीडिया के अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद है द स्टोरेज एंड फ्लो थ्रू अ पोरस मीडिया इज अफेक्टेड बाय दिस 2 मेथड्स, टाइप्स ऑफ रॉक इन अ फॉर्मेशन एंड सेकेंड है नंबर, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द पोर्स। कितने नंबर्स है, उसकी साइज़ क्या है और उसकी अरेंजमेंट कैसी है, उसके ऊपर और कौन से टाइप का रॉक है उसके ऊपर ये द स्टोरेज एंड फ्लो थ्रू पोरस मीडिया इज अफेक्टेड, राइट। Pores are generally irregular in a shape because of these 2 reasons. First one is a difference in minerals making up a rocks and second है geologic processes experienced by them, ठीक है। सो ये तो हो गई अंडरग्राउंड वाटर की बात। अब हम लोग देखेंगे जोन्स ऑफ सेचुरेशंस कौन से होते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हो टोटल जोन्स ऑफ सेचुरेशन की फिगर शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें है अनसेचुरेटेड जोन, सैचुरेटेड जोन, वाटर टेबल एंड कैपिलरी फ्रिंज। सो अनसेचुरेटेड जोन क्या है? तो अनसेचुरेटेड जोन है जोन बिटवीन द लैंड सरफेस एंड वाटर टेबल। सो लैंड सरफेस एंड वाटर टेबल के बीच में जो जोन आता है उसको बोलेंगे अनसेचुरेटेड जोन। उसके बाद है सैचुरेटेड जोन। सो पोर्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, ये जो पोर्स अनसेचुरेटेड जोन के अंदर जो पोर्स है उसके अंदर क्या होगा? एयर एंड वाटर होगा एंड दैट ऑल्सो कॉल्ड एज अ वाडोस जोन और अ जोन ऑफ एरेशन, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एयर एंड वाटर है इसलिए। उसके बाद सेकेंड जोन है सैचुरेटेड जोन। सो जिसमें जो पोर्स होते हैं वो कम्प्लीटली पानी से भरे होते हैं, जिसमें एयर नहीं होती है, ठीक है। ये जो सैचुरेटेड जोन है उसके अंदर जो पोर्स है वो कम्प्लीटली फिल्ड विथ द वाटर होते हैं। उसके बाद है वो इट कंटेन्स वाटर एट अ ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ फेरेटिक जोन, ठीक है, उसको फेरेटिक जोन भी कहा जाता है। उसके बाद है वाटर टेबल। सो सरफेस वेयर द पोर्स वाटर प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक, जो सरफेस पे
पोर वाटर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक होता है, उसको बोलेंगे वाटर टेबल. सो वाटर टेबल डिवाइड्स बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जोन. ठीक है, जो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड जोन को डिवाइड करता है वो लाइन को बोलेंगे वाटर टेबल. ठीक है. कैपिलरी फ्रिंज, सो जोन इमीडिएटली अबाउ द वाटर टेबल दैट गेट सैचुरेटेड बाय अ कैपिलरी फोर्सेस. जो एरिया है वो सैचुरेटेड होता है कौन से फोर्सेस की वजह से? कैपिलरी फोर्सेस की वजह से. वो एरिया को बोलेंगे कैपिलरी फ्रिंज. ठीक है. उसके बाद है सॉइल वाटर. नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल वाटर. सो देर आर 3 कैटेगरीज आर देर इन अ सॉइल वाटर. फर्स्ट है हाइड्रोग्रॉस्पिक वाटर, सेकेंड है कैपिलरी वाटर एंड थर्ड है ग्रेविटी वाटर. So what is hygroscopic water? So microscopic from a film of a water surrounding the soil particles. ठीक है. जो हाइड्रोस्कोपिक वाटर है उसके अंदर क्या होता है, एक सॉइल पार्टिकल के आजू बाजू में एक फिल्म जैसा बनता है. सो द स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर अट्रैक्शन इज देयर एंड वाटर कैन नॉट बी रिमूव बाय नेचुरल फोर्सेस. राइट. उसका एडहेसिव फोर्सेस जो होता है वो 31 बार्स एंड अप टू 10,000 बार तक का होता है. मिनिमम होता है 31 बार्स. उसके बाद सेकेंड है कैपिलरी वाटर. सो वाटर हेल्ड बाय अ कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन अ फिल्म्स ऑफ अ हाइड्रोस्कोपिक वाटर एंड कैन बी रिमूव्ड बाय एयर डाइंग और अ प्लांट एब्जॉर्प्शंस. ठीक है. Plant extracts capillary water until the soil capillary force is equal to a extractive force. जब तक ये एक्सट्रैक्टिव फोर्स जितना नहीं होता है सॉइल कैपिलरी फोर्स वो सेम नहीं होता है तब तक क्या होता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट कैपिलरी वाटर. विल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? जो सॉइल कैपिलरी फोर्स जब ज़्यादा होता है प्लांट एक्सट्रैक्टिव का तो तब विल्टिंग पॉइंट आता है. ठीक है. उसके बाद है ग्रेविटी वाटर. सो वाटर दैट मूव्स थ्रू द सॉइल बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको बोलेंगे ग्रेविटी वाटर. फील्ड कैपेसिटी, तो अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन अ सॉइल आफ्टर अ एक्सेस वाटर हैज़ ड्रेन इज कॉल्ड अ फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है. सो ये डेफिनेशंस जो थी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है. ये डेफिनेशंस जीटीयू में भी एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जाती है. तो आपको ये ध्यान रखना है, व्हाट इज़ विल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ वाटर लेवल, ये फील्ड कैपेसिटी, ग्रेविटी वाटर किसको बोलते हैं, ये कैपिलरी वाटर किसको बोलते हैं, हाइड्रोस्कोपिक वाटर किसको बोलते हैं. ये सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जीटीयू के लिए. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज. So soil moisture storage refers to amount of water that is stored in a soil and is accessible to the plant roots or a effective rooting depth of a plants in a specific soil. The water is held in the soil against the pull of gravity and soil is said to be a wilting towards wilting points when plant roots are unable to extract water. In other words, a plant will wilt and eventually die after a prolonged moisture defect stress. तो उसको बोलेंगे soil moisture storage. So soil moisture that is generally accessible to the plant root is a capillary water हेल्ड इन अ सॉइल बाय अ सरफेस टेंशन. जो कैपिलरी वाटर होता है वो क्या होता है, कैपिलरी वाटर जो वाटर टेबल के ऊपर वाला पोर्शन है उसके अंदर जो सॉइल के अंदर जितना भी सरफेस टेंशन के वजह से पानी स्टोर हुआ है एंड फॉर अ कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द वाटर एंड सॉइल. सो almost all the capillary water is available water in a soil moisture storage and is removable for a PET demands through the action of a plant roots and a surface evaporation. So some capillary water remains added to a soil particles along with the hygroscopic water when capillary water is full in a particular soil and that soil is said to be that field capacity.
उसकी जितनी फील्ड कैपेसिटी होगी वहाँ तक का जो पानी भरा जाता है उसको बोलेंगे कैपिलरी वाटर. ठीक है. So when soil moisture is at a field capacity, plant roots are able to obtain water with less effort and water is thus rapidly available to them. ठीक है. सो जब फील्ड कैपेसिटी सॉइल मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी जितना होता है तो क्या होता है, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो कोई भी एफर्ट के बिना अपने को जितना पानी चाहिए उतना पानी ले सकता है. ठीक है. As the soil water is reduced by soil moisture utilization, the plant must extract a greater effort to extract the same amount of moisture. So whether naturally occurring or artificially applied, water infiltrates the soil and replenishes available water content, a process known as the soil moisture recharge. राइट. सो ये टॉपिक हमारा आज ख़त्म होता है. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है. अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर गूगल मीटिंग पे हम लोग बात कर सकते हैं. थैंक